My lovely students, welcome to Logical. This is the seventh session on probability. Start करते हैं session. And first question of this session. A box contains 12 cards numbered from 1 to 12. If 5 cards are selected at random without replacement, so what is the probability that the median of the numbers selected is 5? Pause the video and try to solve the question. 12 cards are there in a box numbered from 1 to 12. 5 cards को हमने randomly select किया है without replacement. So what is the probability that median of the numbers selected is 5? What is the median? So 5 cards are selected और 5 कार्ड नंबर्स हमारे 1 से लेकर 12 के बीच में कोई भी नंबर्स होंगे, ठीक है, रैंडम 5 नंबर्स, बट मीडियन ऑफ दोज नंबर्स हैज टू बी 5. When numbers are arranged in an increasing order, so the middle card should be having number equal to 5. Total 5 cards. Out of those 5 cards, when card numbers are arranged in increasing order, so the middle number, this should be the median value, which is equal to 5. यानी कि मिडिल कार्ड तो फिक्स हो गया कि मिडिल कार्ड मस्ट बी कार्ड नंबर 5. Isn't it so? So the first two cards, the cards with lesser numbers, must have numbers less than 5. And the last two cards, cards with higher numbers, must have card numbers greater than 5. और एक कार्ड तो हमारा फिक्स्ड है, that is card number 5. These are our favorable cases. Total cases क्या होंगे? Any 5 cards selected from 12. So total cases will be 12C5. And favorable cases will be when first 2 cards are selected from first 5 cards, यानी कि 5C2, multiplied by third card being card number 5 itself, यानी कि 1C1. एक ही कार्ड है, उसी को सेलेक्ट करना है हर बार. और फिर लास्ट 2 विल बी फ्रॉम रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है, विच आर ग्रेटर देन 5. तो कितने कार्ड्स बचे हमारे दैट आर ग्रेटर देन 5? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आउट ऑफ. एक सेकेंड पहले वाले में गड़बड़ कर दिया. लेस देन 5 में 4 कार्ड्स होंगे, लेस देन 5 में 4 कार्ड्स होंगे और ग्रेटर देन 5 में होंगे 7. 1, 2, 3, 4 और ग्रेटर देन 5 में फिर 6 से लेकर 12 तक 7 कार्ड्स, तो 7C2. दिस विल बी आवर फेवरेबल केसेस. बस अब सॉल्व कर लेना है. 4C2 इज 6, 7C2 is 21. So 6 and 21 divided by 12 into 11 into 10 into 9 into 8, and that divided by 5 factorial. 5 into 4 into 3 into 2. 4 into 3 is 12, cancel out हो गया. 5 into 2 is 10, ये भी cancel out हो गया. बचा है हमारा 11, 9 and 8 और न्यूमरेटर में है 6 into 21. तो 6 into 3, 7 बच गया. 18, 9 and 4. 7 by 44. This should be the probability in the given case. हमारा आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 44. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The probability that A and B will tell the truth are 3 by 5 and 3 by 4 respectively. So what is the probability that they will agree with each other when narrating the same incident? So A can tell the truth with a probability of 3 by 5. B can tell the truth with a probability of 3 by 4. और क्वेश्चन हमें डिमांड कर रहा है what is the probability that they will agree with each other when narrating the same incident. अब सेम ही स्टोरी है, सेम इंसिडेंट है, इसको दोनों लोग नरेट कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन का कंडीशन क्या है? that they should be agreeing with each other. अब एग्रीमेंट किस किस तरह से हो सकता है? कंडीशन है agreeing with each other, ठीक है. सो ए कैन स्पीक द ट्रूथ, सच बोल सकता है, और ही कैन लाई. सिमिलरली बी कैन स्पीक द ट्रूथ और ही कैन लाई. और एग्रीमेंट के दो मेथड्स हो सकते हैं. ईदर दे बोथ आर स्पीकिंग द ट्रूथ एंड देन एग्रीइंग, और दे बोथ आर स्पीकिंग द लाई, ठीक है, दे आर स्पीकिंग द लाई एंड देन दे आर एग्रीइंग. तो एग्रीमेंट कैन बी व्हेन बोथ ऑफ देम आर स्पीकिंग ट्रूथ, ए एज वेल एज बी, और बोथ ऑफ देम आर लाइंग, ठीक है. सो ईदर ऑफ दीज टू केसेस. फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? ए कैन स्पीक द ट्रूथ विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 by 5 एंड बी कैन डू सो विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 by 4 एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट. 3 by 5 into 3 by 4 और यानी एडिशन. सेकेंड केस में बी इज स्पीकिंग लाई एंड ए इज ऑल्सो स्पीकिंग लाई. सो बी का लाई करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 by 4 और ए का है 2 by 5. तो आंसर विल बी 3 into 3 plus 2, that is equal to 11 by 20. So with the probability of 11 by 20, they will be agreeing with each other. Agree कब करेंगे? जबकि दोनों या तो सच बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं. If one is lying and one is speaking the truth, that is disagreement.
तो उन केसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, वैसे भी समझ सकते थे कि हम उन केसेस को सब्ट्रैक्ट करते थे 1 माइनस when A is speaking the truth, that is 3 by 5, multiplied by B is lying, which is equal to 1 by 4, plus A is lying, which is 2 by 5, into B is speaking the truth, that is 3 by 4, which is 1 minus 9 by 20, and hence 11 by 20. Okay, clear है? If that is understood, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करो दैट इफ ए बी एंड सी आर थ्री फ्रेंड्स, ए इज स्पीकिंग ट्रूथ 3 out of 4 times, B is speaking truth 4 out of 5 times, and C is speaking truth 3 out of 5 times, then you have to find the probability that at most one of them narrates an incident truthfully. At most one of them narrates an incident truthfully. Since there are 3 persons, तो चांसेस क्या क्या हो सकते हैं? A, B and C, there are total 3 persons, और तीनों से हमने एक स्टोरी पूछा, एक इंसिडेंट पूछा, तो इधर none is speaking the truth, 0 persons speaking the truth, or exactly 1 will be speaking the truth, or 2 will be speaking truth, or 3 will be speaking truth. All 3 will be speaking truth. क्वेश्चन हमें कह रहा है probability that at most one narrates incident truthfully, यानी कि हमें at max या तो कोई भी सच ना बोले, 0 persons speaking the truth, or at most 1 person speaking the truth. So these two are our favorable cases. Either no one is speaking truth or exactly one, which can be A or B or C. Or अगर exactly one is speaking truth, the remaining 2 will be lying. Isn't it so? So probability of A speaking the truth, that is given as 3 by 4. Probability of B speaking the truth, that is 4 by 5. And probability of C speaking the truth, that is equal to 3 by 5. So first case, that 0 persons are speaking the truth, यानी कि everyone is lying. सारे जॉली हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है. सो इफ ऑल आर लाइंग, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका? ए का स्पीकिंग ट्रूथ 3 by 4, यानी कि लाइन का होगा 1 by 4. सिमिलरली फॉर बी 1 minus 4 by 5, which is 1 by 5. और सी 1 minus 3 by 5, that is 2 by 5. Everyone is lying. Plus next case is one person is speaking truth. Let us say A is speaking the truth and B and C are lying, or A is lying, B is speaking the truth and C is also lying. Or third case, that C is speaking the truth and A and B are lying. ठीक है, लाई करने का नोटेशन है ट्रूथ का ऑपोजिट लॉजिकली, सो बस उस नोटेशन को लिखा है, अदरवाइज फॉल्स समझ लो. ठीक है, ए इज स्पीकिंग ट्रूथ, बी एंड सी आर लाइंग. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ए ट्रूथ बोल रहा है तो 3 by 4 फॉर ए स्पीकिंग ट्रूथ, एंड फॉर द अदर्स 1 by 5 एंड 2 by 5. प्लस ए लाई कर रहा है तो 1 by 4, बी इज स्पीकिंग ट्रूथ 4 by 5, एंड फॉर सी लाइंग 2 by 5. लास्ट केस, ए इज लाइंग विच इज 1 by 4, बी इज लाइंग 1 by 5, एंड सी इज स्पीकिंग ट्रूथ, दैट इज 3 by 5. बस बिना कुछ भी कैंसिल आउट कर रहे हुए स्ट्रेट अवे डिनोमीटर तो सेम ही आ रहा है अपना. 4 into 5 into 5, that is 100. न्यूमरेटर आएगा हमारा 2 plus 6, that is 8 plus 8 16 plus 3 19. So 19 by 100, यानी कि 0.19 should be the answer. The probability that at most one of them is narrating an incident truthfully, that will be 0.19 in this particular case. Is that clear? Okay. So next question. Find the probability of getting 53 Sundays in a leap year. What will be probability of getting 53 Sundays in a leap year? अब एक लीप ईयर में हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 366 होंगे. नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 366, which is basically 52 weeks plus 2 odd days, 2 extra days. अब 52 तो कंप्लीट वीक्स हैं, तो 52 कंप्लीट वीक्स में हमारे पास 52 मंडेज भी होंगे, 52 संडेज भी होंगे, 52 वेडनेसडेज भी होंगे, 52 थर्सडेज भी होंगे, यानी कि सारे के सारे वीक के डेज हमारे 52 टाइम्स तो होंगे ही होंगे, कंप्लीट होंगे. बट क्वेश्चन कह रहा है हमें चाहिए 53 संडेज, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस आर व्हेन देयर आर 53 संडेज, यानी कि 2 एक्स्ट्रा डेज में से कोई एक हमें संडे चाहिए. एक संडे और एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो विल बी हैविंग 53 संडेज. अब डेफिनेटली दोनों संडे तो नहीं हो सकते, बिकॉज ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं कॉन्जिक्यूटिव डेज होंगे. इजंट इट सो? ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक संडे आ जाएगा और एक फिर थर्सडे आ जाएगा. कॉन्जिक्यूटिव डेज होंगे हमारे डेफिनेटली. ठीक है, सो दो में से कोई एक ही संडे हो सकता है. और क्योंकि ये 2 डेज हमारे कंसेक्यूटिव डेज हैं, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? इधर दे कैन बी संडे एंड मंडे, और मंडे एंड ट्यूसडे, और ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और लास्ट केस सैटरडे एंड संडे. नाउ इन फर्स्ट केस हमें संडे मिल रहा है और लास्ट वाले केस में भी संडे मिल रहा है. आउट ऑफ टोटल 7 केसेस
अब इन 7 में से ही कोई एक केस होगा. आउट ऑफ दीज 7 केसेस 2 केसेस आर फेवरेबल, तो और प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7. With the probability of 2/7 we'll be getting 53 Sundays in a leap year. अब यहाँ पे लीप ईयर की बजाय अगर एक नॉर्मल ईयर होता है, यानी कि नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज, सो एक 365 डेज वाले ईयर में हमारे पास एक ही एक्स्ट्रा डे होता है. इंस्टेड ऑफ लीप ईयर, इफ इट वॉज अ ईयर विथ 365 डेज, इन सच ए ईयर वी हैव ओनली वन एक्स्ट्रा डे. अब दैट एक्स्ट्रा डे कैन हैव 7 चॉइसेस, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और एक ही है हमारे काम का, दैट इज संडे. यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारा होता है 1/7. क्या लॉजिक समझ पा रहे हो? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. So now let us say next question is that there are two events A and B. A and B are two events such that probability of A is equal to 0.54, probability of B this is equal to 0.69, and the probability of A intersection B this is equal to 0.35. Now there are three questions that we need to answer. First is probability of A union B. ये तो easy है, simple है. Second part, probability of A dash intersection B dash. And third part, probability of A intersection B dash. So pause the video and try to solve these three parts for the question. अब वन मेथड इज फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लें. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश दैट ए यूनियन बी दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि तीनों ही वैल्यूज हमें गिवन है. तो आंसर आ जाएगा 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35, यानी कि 0.54 प्लस 0.34 दैट इज इक्वल 0.88. डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, या इंस्टेड हम वेन डायग्राम बना के सॉल्व करें. अब वैल्यूज हमें डेसिमल में दी हैं 0.54, 0.69, 0.35, और सिंप्लिसिटी से हम मान लेते हैं कि 100 हमारा टोटल केसेस है. बिकॉज इफ टोटल केसेस आर 100 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.54. ठीक है, विच इज 54 डिवाइड बाई 100, यानी कि आउट ऑफ 100 टोटल केसेस 54 केसेस आर फॉर इवेंट ए. यानी कि इवेंट ए के इनसाइड, यानी कि इनसाइड द सेट ए विल बी हैविंग 54 एलिमेंट्स. सिमिलरली इनसाइड द सेट बी विल बी हैविंग 69 एलिमेंट्स. एंड सिंस ए इंटरसेक्शन बी 0.35 है, 35 by 100 है, तो 35 केसेस विल बी इन द सेक्शन ए इंटरसेक्शन बी. अगर टोटल ए में 54 है, 35 आर इनसाइड ए इंटरसेक्शन बी, तो रिमेनिंग बचेगा 19. सिमिलरली टोटल बी में 69 है, तो 34 बचेगा विच इज ओनली इन बी, ओनली बी. इजंट इट सो? ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचा? 19 प्लस 35 प्लस 34 दिस इज इक्वल टू 88. तो आउटसाइड ए एंड बी विल बी 12. इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? ओके, और फिर यहाँ से कैलकुलेट करना होता है ए यूनियन बी, तो भी निकाले 35 प्लस 34 प्लस 19 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.88. ओके, नाउ सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. अब ए डैश क्या होगा? ए डैश दैट इज आउटसाइड ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा है 0.54, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विल बी 0.46. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, that will be 1 minus 0.69, that is 0.31. और हमें चाहिए probability of A dash intersection B dash. So if you use the formula probability of A dash union B dash, this will be equal to probability of A dash plus probability of B dash minus probability of A dash intersection B dash. और हमें यही वैल्यू तो आइडेंटिफाई करना है, तो बस इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ, probability of A dash union B dash को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, और फिर सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो. ओके, तो क्या वैल्यू आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है हमें. ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा? ए डैश दैट इज आउटसाइड ऑफ ए और बी डैश दैट इज आउटसाइड ऑफ बी, और दोनों का यूनियन क्या होगा?
दोनों का यूनियन वैल्यू क्या होगा? ए डैश दैट इज आउटसाइड ऑफ ए। अब ए डैश में सारी वैल्यूज आएंगी जो कि आउटसाइड ऑफ ए होंगी, विच इज ऑल दीज वैल्यूज। बी डैश में सारी वैल्यूज होंगी जो कि आउटसाइड ऑफ बी होंगी, विच विल बी ऑल दीज वैल्यूज। एक सेकेंड, बी के अंदर कैसे चले, आउटसाइड ऑफ बी में, एक सेकेंड, ये बी के अंदर क्यों कर दिया? ठीक है, तो जब इन सारी की सारी वैल्यूज को देखेंगे तो ये जो हमारा पार्ट है विच इज इन ए एज वेल एज इन बी, इस पार्ट के अलावा सारे के सारे पार्ट हमारे इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि 65 रिमेनिंग पार्ट्स, 100 माइनस 35, तो 0.65 विल बी प्रोबेबिलिटी फॉर दिस पार्ट। The probability of A dash intersection B dash, this will be equal to probability of A dash, that is 0.46, plus probability B dash, that is 0.31 minus 0.65. So that will be equal to 0.12, 0.12। या फिर डायरेक्टली हम, क्योंकि डायग्राम हमने बना ही लिया था, तो डायग्राम बना के स्ट्रेट अवे भी सॉल्व कर सकते थे कि हमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या होगा, तो ए डैश दैट इज आउटसाइड ऑफ ए, बी डैश दैट इज आउटसाइड ऑफ बी, यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में वो पोर्शन आएगा जो कि ए के भी आउटसाइड हो, बी के भी आउटसाइड हो, यानी कि दैट पोर्शन विल बी दिस वन ओनली, दैट इज आउटसाइड ऑफ ए एज वेल एज बी, दैट इज इक्वल टू 12 स्ट्रेट अवे आउट ऑफ टोटल 100, तो 12 by 100 यानी कि 0.12 विल बी आर आंसर। अब लास्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए एंड आउटसाइड ऑफ बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, ए एंड आउटसाइड ऑफ बी का इंटरसेक्शन। अब देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ हम लेट अस से इस पार्ट पे फोकस करें, व्हाट कैन बी सेड अबाउट दिस पार्ट, दिस इज पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ ए, बट हमने कौन सा पार्ट रिमूव किया है जो कि बी में भी कॉमन था, इजंट इट सो? जो बी में भी कॉमन था उस पार्ट को रिमूव किया है, तो बेसिकली दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इजंट इट सो? यही तो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये क्लियर है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या आंसर होगा? ए एंड बी डैश, यानी कि आउटसाइड ऑफ बी में जो कॉमन होगा वही हमें आइडेंटिफाई करना है, तो यही सेम पोर्शन तो होगा, विच इज कॉमन इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि दैट इज आउटसाइड ऑफ ए एज वेल एज इन ए, सॉरी आउटसाइड ऑफ बी एंड इन ए, तो आउटसाइड ऑफ बी एंड इन ए इज दिस पोर्शन ओनली, तो आंसर विल बी 0.19। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सिमिलरली अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, यानी कि पोर्शन दैट इज आउटसाइड ऑफ ए एंड इन बी, अगर आउटसाइड ऑफ ए है तो इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन को रिमूव करोगे, आउटसाइड ऑफ ए एंड इन बी, so that should be this portion which is outside of A as well as in B, यानी कि this will be equal to 0.34, 34 by 100, that is 0.34। क्या ये क्लियर है? ओके, क्या डायग्रामेटिकली समझ पा रहे हो? तो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जितना भी जैसे किया वो समझ में आएगा, अप्रिशिएट कर पाओगे। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, and if you like this session then make sure to hit the like button as well, and if you have not already subscribed to the YouTube channel then subscribe to the channel as well as press the bell icon, and you can also message me on Telegram at ADITYAKT. That's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.